Hello students, today we are going to discuss the draft relating to payment of interest. As we all know that interest is a return on a borrowed capital and debenture capital is a loan, it is a borrowed capital of the company. Debenture holders are the creditors of the company. They get a fixed rate of interest on their capital, or we can say on their loan amount. Company pays interest to interest warrant sent along with the letter. We must know that interest is a return on a borrowed capital and the rate of interest is predetermined at the time of issue of debentures. So company cannot vary or cannot change the rate of interest payable on debentures. Interest is a debt for a company and it is not dependent on the profit or performance of the company. Whether company performs with good profit or bad profit, it is their liability to pay interest. So we say that payment of interest is not dependent on the profit of the company. The letter which we are going to discuss is relating to payment of interest to interest warrant. So generally company pays interest through this interest warrant, and this letter will contain number of debentures, distinctive number of debentures, then gross amount of interest payable, TDS deductible, net amount of interest payable, etc. Board resolution is required for the payment of interest on the debenture. The company pays interest through either interest warrant or electronically. So let's start with the draft. As the screen is showing, there is a Rolta India Limited company, and it's below the name of the company there is a address of registered office. Then CIN, company identity number, is provided there. This number is provided by the रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी. सो जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो ROC ही ये CIN नंबर देता है, और कंपनी के लिए ये मैंडेटरी होता है कि उसने अपने हर रिकॉर्ड्स पे, बिल बुक पे, लेटर्स पे ये CIN नंबर मेंशन करना ज़रूरी है. उसके बाद में आप देखोगे कंपनी का वेबसाइट, मेल ID और डेट दिया है. डेट जिस दिन ये लेटर लिखा गया है ये उस दिन की डेट है. और अपोजिट साइड में आप फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर और रेफरेंस नंबर देखोगे, और उसके नीचे डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा है जिसको ये लेटर ड्राफ्ट हो रहा है, जिसको ये लेटर भेजा जाएगा. द सब्जेक्ट ऑफ द लेटर विच इज़ मैंडेटरी टू बी मैंशन इज़ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डिबेंचर. सो ये जो लेटर है इसका सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. सो लेट्स सी हाउ अ सेक्रेटरी कन्वेज डिबेंचर होल्डर अबाउट interest which is payable to him. Dear Madam, I am directed to inform you that the Board of Directors has passed a resolution in board meeting held on 5th June 2019 regarding payment of interest on your 110% non-convertible debentures of rupees 100 each. तो यहाँ पे सेक्रेटरी दिव्या आहूजा को कन्वे कर रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा मुझे निर्देश मिले हैं. आई एम डायरेक्टेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. किस चीज़ का डायरेक्शन मिला है? टू इन्फॉर्म यू, आपको इन्फॉर्म करने के लिए, सूचित करने के लिए मुझे निर्देश मिला है. और क्या चीज़ें सूचित करनी है कि बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास हुआ है 5 जून 2019 को. तो बोर्ड मीटिंग 5 जून को ली गई थी और इसमें एक रिजोल्यूशन पास हुआ था रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. सो वो सेक्रेटरी मिसेस दिव्या आहूजा को ये इन्फॉर्म कर रहा है कि आपकी कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, वहाँ पे उस पर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड है, और वो डिबेंचर का नेचर क्या है और उसकी वैल्यू क्या है. सो इस तरह से पहले पैराग्राफ में इन्होंने सारी चीज़ें इन्फॉर्म कर दी है सेक्रेटरी ने मिसेस दिव्या आहूजा को. दैट आई एम डायरेक्टेड to inform you that board has passed a resolution in board meeting
held on, that board meeting is held on 5th June 2019, and the information which is going to be provided to you, or the resolution passed, is relating to payment of interest on your 110% नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। अब यही चीज़ें उसने टेबल फॉर्म में वहाँ पे कन्वे किया है। तो लेटर में अगर टेबल फॉर्म में चीज़ें अगर कन्वे की जाती है तो रीडर के लिए आसान हो जाता है चीज़ें समझने में। सो हैव अ लुक, फर्स्ट कॉलम इज़ रिलेटिंग टू फोलियो नंबर एंड सेकंड इज़ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो क्योंकि इन्होंने सेक्रेटरी ने फर्स्ट पैराग्राफ में 100 डिबेंचर्स के बारे में बोला है, इसलिए यहाँ पे भी हम सेकंड जो कॉलम है उसमें 100 डिबेंचर्स ही लिखेंगे। देन द डिस्टिंक्टिव नंबर, दैट इज़ द सीरियल नंबर फ्रॉम 601 टू 700। ये जो सीरियल नंबर की डिबेंचर्स है ये दिव्या आहूजा को अलॉट हुए हैं, इसलिए 601 से 700 वहाँ पे नंबर लिखा है। ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 1000। देन TDS 10% ऑन इंटरेस्ट नील आएगा, क्योंकि TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर अगर इंटरेस्ट की अमाउंट गई तो ही उस पर TDS कटता है, वो भी 10% कटता है, तो उस हिसाब से। देन नेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज़ 1000 एंड इंटरेस्ट वारंट नंबर जो आप मन से लिख सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने ध्यान रखना है कि हमने लिखा है कि मिसेस सेक्रेटरी ने लिखा है कि मिसेस दिव्या आहूजा के पास में द नेम इज़ दिव्या सलूजा, उनके पास में 100 डिबेंचर से एक डिबेंचर की वैल्यू 100 है, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो हमको मिल जाएंगे 10,000। इस 10,000 पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, उस हिसाब से इंटरेस्ट निकला है 1000। सो ग्रॉस अमाउंट इंटरेस्ट की 1000 इस तरह से हमने कैलकुलेट की है। सो आप नंबर ऑफ़ शेयर्स लेटर में अपने मन से लिख सकते हो। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, अगर आप उसका नंबर ऑफ़ शेयर अगर 200 करते हो और कन्वर्टेबल डिबेंचर की प्राइस अगर आप 100 बताते हो तो 200 इंटू 100 करना पड़ेगा आपको, तो वो टोटल डिबेंचर की वैल्यू निकल जाएगी, फिर उस पर आपको 10% इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तो जो आप रेट लिख रहे हो, जो अमाउंट और नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स लिख रहे हो, वो केयरफुली लिखना, क्योंकि वो एक दूसरे से मैच होना चाहिए, उसके वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट मैच होना चाहिए। सो ग्रॉस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद में उस पर TDS कटेगा, TDS लेस होगा, बट क्योंकि यहाँ पर ये जो डिबेंचर की अमाउंट है ये कम है और इस पे जो इंटरेस्ट निकला है ये भी कम है, इसलिए इस पे टैक्स नील है। तो ग्रॉस में से टैक्स कटने के बाद नेट अमाउंट इंटरेस्ट की आएगी, दैट इज़ 1000। यहाँ पे ये कॉलम कंप्लीट होता है। नीचे सेक्रेटरी ने लिखा है द इंटरेस्ट वारंट इज़ इनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज़ डिटैच द इंटरेस्ट वारंट अलॉन्ग विद द परफोरेटेड लाइन्स। तो इंटरेस्ट वारंट भी इन्होंने इस लेटर के साथ ही दिया है और उनको कहा है कि प्लीज़ आप इस इंटरेस्ट वारंट को क्या कर लो, डिटैच कर लो। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर रोल्टा इंडिया लिमिटेड, साइन मिसेस सिमरन उनेचा। सो यहाँ पे अगेन ये जो सिमरन उनेचा है ये कंपनी सेक्रेटरी है और कंपनी के बिहाफ पे वो लेटर लिख रहे हैं, इसलिए ऊपर पहले कंपनी का नाम लिखा है और नाम के पहले फॉर लिखा है। तो जैसे कि मैंने बताया, जब आप किसी के बिहाफ पे आप साइन करते हो तो पहले फॉर लिखना ज़रूरी होता है और फिर उसके नीचे खुद की साइन। अब ये लेटर जब कंप्लीट होता है तो नीचे एनक्लोजर लिखना ज़रूरी है, जिससे रीडर को समझ में आएगा कि इस लेटर के साथ में और भी कोई डॉक्यूमेंट्स क्या है अटैच किए हुए हैं। सो एनक्लोजर इंटरेस्ट वारंट ये लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि हमने अंदर लेटर में मेंशन किया है कि इस लेटर के साथ में हम इंटरेस्ट वारंट एनक्लोज कर रहे हैं। ओके, विद दिस वी कंक्लूड हियर। थैंक यू।